elasticity of demand, where we had described the concept of types of elasticity. We have described types of elasticity of demand. Price elasticity, income elasticity, and cross elasticity of demand. Hold on, पीपीटी में उसको ही कॉपी पेस्ट इमेज बना के उधर कॉपी पेस्ट कॉरल में. So today we are going to describe another important concept of elasticity called as methods of measuring elasticity of demand. Methods of measuring elasticity of demand. Here, in this methods mein, we are going to study three different methods. Of that, the first method what we have is called as percentage method, or called as proportionate method, or called as ratio method. Percentage, proportionate और ratio method. ये मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इस मेथड में हम फॉर्मूला यूज करते हैं ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ हमने. दैट इज percentage change in demand, that is change in demand upon original demand, change in demand upon original demand divided by change in price upon original price is equal to delta D upon D, delta D upon D divided by delta P upon P, delta D upon D divided by delta P upon P is equal to delta D upon D P upon delta P multiplied by P upon delta P. Is that the case? You cannot hear me properly because आवाज कट कट के जा रहा है. हेलो 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 Hello. Wait, I am checking the configuration. Wait. Hello. Hello. Are you listening clearly to me? Is my voice breaking now? Okay, thank you. Thanks for your confirmation. Okay. तो ये फर्स्ट मेथड हमने यहाँ पे कंप्लीट किया. हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. आई नीड नॉट डिस्कस इट फर्दर. अभी हम दूसरा मेथड डिस्क्राइब करेंगे. दैट इज टोटल. यहाँ पे इसमें हमने देखा था 5 टाइप कैलकुलेट कर सकते हैं. ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट विच इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ED is equal to 0, perfectly inelastic demand. ED equal to 1, unitary elastic demand. ED greater than 1, elastic demand. Less than 1, relatively inelastic demand.
The second method of measuring elasticity is total outlay method or total expenditure method. This method is also called as total revenue method. Total revenue method. यहाँ पे we should understand that total revenue or total expenditure or total outlay is equal to price multiplied by quantity. Price of the product multiplied by quantity. This method of estimating or measuring the price elasticity of demand was given up by Professor Alfred Marshall. This method was given up by Professor Alfred Marshall. Under this method, Professor Marshall has explained the nature of elasticity based on the relationship between price and total revenue. ये बहुत ही क्लियर वे पे मैंने बताया आपको कि in this method Professor Marshall has explained us the nature of elasticity. Elasticity क्या रहेगा? It would be based on relationship between price and total revenue. Price and total revenue के बीच में relationship क्या है? Based upon that, he has explained with the help of relationship between price and total revenue. Now, let us try to understand this with the help of one table. Table से समझो जिससे आपको ये समझना इजी पड़ेगा. Okay, I'm putting up one table. Total price of each unit, quantity demanded, total expenditure and elasticity of demand. तो पहला लेते हैं हम प्राइस. 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है. मैं 3 अलग अलग डिस्कशन करने वाला हूं. दूसरा लिया है क्वांटिटी और तीसरा लिया है टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू. प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. रिमेंबर. तो देखो 10 5s are 50, 10 5s are 50, 25 2s are 50, 2 10s are 20, 10 5s are 50, 50 2s are 100, 70, 50, 36. Is that okay? Any doubt into that table? अब तक जितना डिस्कस किया है टेबल के अंदर कुछ डाउट है क्या? अभी ये टेबल के 3 पार्ट है, राइट? पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. तो हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे. हम लोग एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट ए को. वी डिस्कस पार्ट ए फर्स्ट. ओके. पार्ट ए में अगर आप ऑब्जर्व करो, अभी क्वांटिटी भूल जाने का है. क्वांटिटी हमने सिर्फ टोटल आउटले कैलकुलेट करने के लिए यूज किया. अभी यहां पे प्रोफेसर मार्शल ने किसके बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है? आई फॉरगॉट. आई हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. कोई बताएगा किसके बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया उन्होंने? पी एंड क्यू, ए एंड बी के बीच में नहीं क्या?
Kaustubh, it explains us the relationship between प्राइस एंड रेवेन्यू. इसके लिए हमने क्यू को हटा दिया है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी. प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप आ गया लॉ ऑफ डिमांड में. तो प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू हम 3 पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे. पार्ट ए, पहले हम पार्ट ए को डिस्कस करते हैं. आप ऑब्जर्व करो पार्ट ए में क्या हो रहा है. प्राइस देखो क्या हो गया, 10, 5, 2. प्राइस कम हो गया. outlay remains the same, constant. Price changes and outlay remains the same. तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा, एंड outlay remains the same, that is the case of unitary elastic demand. It will always be unitary elastic. That is, ED will equal to be 1 always. It will always be equal to 1. That is the first case. Second case, part B. Part B में देखो प्राइस क्या हो गया, 10, 5, 2. प्राइस कम हो गया. मगर आप ऑब्जर्व करो टोटल रेवेन्यू देखो क्या हो गया है. ऑब्जर्व दिस पार्ट, 20, 50, 100. प्राइस कम हो गया, रेवेन्यू बढ़ गया. कौन सा रिलेशनशिप है ये, बोलो ये कौन सा रिलेशनशिप है. प्राइस का कम होना और आउटले का बढ़ना. तो प्राइस और आउटले के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है अपने पास. नोबडी इज आंसरिंग. दे डोंट नो व्हाट. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. There exists negative relationship, or alternatively the best word for that is, best word क्या है विहांग, लिख रहे थे कुछ बराबर है. बेस्ट वर्ड क्या रहेगा नेगेटिव रिलेशन के लिए? बेस्ट वर्ड इनवर्स रिलेशन. There is inverse relationship between price and total outlay, केस बी के अंदर. तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि अगर प्राइस एंड आउटले के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, सॉरी, प्राइस एंड टोटल आउटले के बीच में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो इट इज इलास्टिक डिमांड. दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ईडी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. अभी केस सी देखो, पार्ट सी. what do we see in part C? प्राइस कम हो गया, 10, 5, 2. प्राइस कम हो गया. आप ऑब्जर्व करो टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, 70, 50, 36. रेवेन्यू कम हो गया. प्राइस कम, रेवेन्यू कम. कौन सा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में? What type of relation we have between both of them? We have direct relation.
तो जब प्राइस और आउटले के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, इट इज इनइलास्टिक डिमांड. It is inelastic demand. ED will always be less than 1. Let us understand it with help of one diagram. X-axis, Y-axis. On Y-axis we measure price and on X-axis we measure total outlay or total expenditure. मैं एक कर्व डायरेक्ट बना देता हूं. DD is the total revenue curve. DD is the total revenue curve. अभी आप ऑब्जर्व करो, मैं इसमें इस कर्व पे 4 पॉइंट्स लिखता हूं. ए, बी, ये ए, ये बी, सी एंड डी. 4 पॉइंट्स हैं. अभी ध्यान दो, मैं पहले पॉइंट बी से सी तक का देखते हैं. P was the price. पॉइंट बी से सी तक. Can I say Q was the quantity? P was the price, Q was the quantity. अभी सी पॉइंट पे आप देखो क्या हो गया है. प्राइस कम होके हो गया P1, मगर क्वांटिटी रिमेन्स एट Q. तो क्वांटिटी नहीं, टोटल आउटले. Q इज द टोटल आउटले. तो प्राइस कम हो गया P से P1, आउटले रिमेन्स द सेम एट Q. राइट. सो इट इज विच टाइप ऑफ डिमांड? आउटले रिमेन्स कांस्टेंट. राइट. तो मैंने क्या बताया था? ED is equal to 1, unitary elastic demand. अभी हम डिस्कस करते हैं पॉइंट ए से बी तक. पॉइंट ए पे प्राइस था P एंड Q was the total outlay. राइट. बी पे देखो क्या हो गया. प्राइस कम हो गया P1, मगर आउटले बढ़ के हो गया Q1. राइट. तो यहां पे पॉइंट ए से बी तक आप देखो क्या हो गया. प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी बढ़ गया. दैट इज आउटले बढ़ गया. प्राइस कम हो गया, आउटले बढ़ गया. आउटले बढ़ के हो गया Q1. तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप मैंने बोलाया था, इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ED विल बी ग्रेटर देन 1. अभी तीसरा पार्ट डिस्क्राइब करते हैं, सी से लेके डी तक. जब प्राइस सी था, जब पॉइंट सी था, वी कैन सी दैट P was the price, Q was the outlay. अभी डी तक जाते हुए प्राइस कम होके हो गया P1, आउटले भी कम होके हो गया Q1. तो यहां पे प्राइस कम हो गया, आउटले भी कम हो गया. प्राइस कम हो गया, आउटले भी कम हो गया. दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. ED less than 1. ED less than 1. That is relatively inelastic demand. तो यहां पे अपना total outlay method of measuring price elasticity is clear, is over. Any doubt into that now? Please ask me. Total outlay method में अगर कुछ डाउट है तो पूछो. ED is equal to 1. देखो, what do we observe is that when there exists, आपका टोटल आउटले बिल्कुल अगर रिएक्ट नहीं करता है, प्राइस बढ़े या कम हो जाए, अगर आउटले चेंज नहीं होगा, देन दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ED विल बी इक्वल टू 1. सी पार्ट वाला. अभी पार्ट सी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो,
पार्ट सी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्रुपिल, प्राइस क्या हो गया देखो, 10.52, प्राइस कम हो गया, उसके साथ साथ आपका आउटले भी कम हो गया। तो रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस कम होना, आउटले भी कम होना, डायरेक्ट रिलेशन। एंड जब डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, प्रोफेसर मार्शल सेड इट इज इन इलास्टिक डिमांड। इज दैट ओके? Now we go to the third type of measuring price elasticity of demand, that is geometric method. Some people also call it as point elasticity method. Geometric method, point elasticity method. इसका फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बताता हूं, जिससे आपको फॉर्मूला समझने में यूजफुलनेस होगा। Let us say D is the demand curve, या तो फिर AB is the demand curve। तो इस मेथड में प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा कि हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग किसी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। Let us say we take it point C. Elasticity of demand we will calculate at one single point. Let us say point C. तो पॉइंट C जब हम देख रहे हैं, हमने जब ये पॉइंट बनाया पॉइंट C, तो आप ऑब्जर्व करो इस पॉइंट C ने इस डिमांड कर्व को दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक सेगमेंट ये रहा, सेगमेंट AC, और दूसरा सेगमेंट ये रहा, सेगमेंट CB। दो सेगमेंट में, तो ये जो एक सेगमेंट है सेगमेंट CB, सेगमेंट CB जो है वो पॉइंट के नीचे के साइड में, तो आई विल कॉल इट एज L, दैट इज लोअर सेगमेंट, एंड CA इज अबाउट द पॉइंट। Segment CA is above the point. I will call it as upper segment. Segment CB and segment CA, दो अलग अलग सेगमेंट्स हमको मिले हैं। तो अभी उस पे से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसका।